guys, in today's session we are going to discuss a very important topic for the board examination as well as for the competitive examination, that is a potentiometer. And actually if you are going to the laboratory, then you just you just see this potentiometer circuit. Okay, here I am just drawing the figure, so don't worry about this, but you whenever you are going to this laboratory, you see this device. Okay, now what is this objective of potentiometer? Why we just studied this theory? So potentiometer is generally helpful to measure the EMF of a cell, EMF of a battery. आपके पास जो भी सेल है उसका EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको फाइंड करना है, तो फिर पोटेंशियोमीटर का यूज होता है. जनरली वोल्टमीटर यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन व्हेन द करंट इज पास थ्रू इट. मींस टर्मिनल वोल्टेज इज मेजर्ड बाय द यूजिंग ऑफ a voltmeter. EMF does not measure by the using of a voltmeter. Okay, so EMF आपको मेजर करना है तो फिर पोटेंशियोमीटर का यूज होगा. Okay, terminal by this using of a voltmeter you can able to measure the terminal voltage, not EMF. You must be not it. अगर आप ऐसा कोई यूज कर रहे हो, देखो यहाँ पे मैं एक सिंपल से सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. नाउ यू जस्ट कंसिडर दिस सर्किट. सपोज ए बैटरी है तो उसका इंटर मतलब ये सेल है पूरा, ठीक है, ये हुआ सेल. अगर आपने इसके साथ वोल्टमीटर कनेक्ट किया ऐसे, then current is flow through it. Whenever the current is flow through it and this voltmeter measure this, then this voltmeter measure the potential difference between these 2 point A and B. तो यहाँ से अगर current flow हो रहा है, this potential difference is equal to EMF only when I is equal to 0. वहाँ से करंट नहीं फ्लो होना चाहिए, लेकिन आपने वोल्टमीटर कनेक्ट किया, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज V. इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर जो होगा वो होगा टर्मिनल वोल्टेज. टर्मिनल वोल्टेज इस केस में टर्मिनल वोल्टेज ही मेजर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मेजर, मतलब EMF डज नॉट मेजर बाय द यूजिंग ऑफ वोल्टमीटर. Why? Whenever you connect it, here must be some current is flow through this circuit, and whenever the current is flow through the circuit, your terminal voltage is what V is equal to E minus I. So you are not able to measure this EMF by this voltmeter because of this. You just observe this circuit and that is the reason for it. Okay, but potentiometer measure the EMF of cell. How? Let's we just analyze this. So actually potentiometer having a two circuits. Potentiometer always having a two circuit. First circuit is called a primary circuit. Second circuit is called a secondary circuit. Let's consider this potentiometer consists of one long wire, one very long wire. Consider this wire AB. This is the long wire AB. So here we draw the primary circuit, here we draw the secondary circuit. Wire is must be required. Okay, so primary circuit consists of one cell. Okay, one battery, main battery, we call it is main battery. Consider it's a E. What is this? Main battery. In a laboratory languages we call it is eliminator. Laboratory में इसको क्या बोलते हैं? Eliminator. ठीक है. So this is main battery and here one variable resistance is present. Consider rheostat. Okay, maybe यहाँ पे एम्पियर एमीटर भी हो सकता है. That depends on situation. एमीटर होता भी है वो नहीं भी होता, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. ओके, सो प्राइमरी सर्किट कंसिस्ट दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स. This type of element consists just one. So that's called a primary circuit. We call it is primary circuit. इसको हम क्या बोलते हैं? Primary circuit. Now in secondary circuit, consider this type of situation. यहाँ पे सेल रहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब ये पूरा सेल है, ठीक है. मान लो EMF एप्सिलॉन है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R. तो इस पॉइंट को आप मान लो कि ये पॉइंट तो यही रहेगा, यहाँ पे B है, आप यहाँ पे मान लो C है, ये पॉइंट तो सेम यहाँ पे सेम टू है, सेम कनेक्टेड है. तो ये जो सर्किट है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट. तो अगर आपको पोटेंशियोमीटर में कुछ भी चेंज करना है वो सेकेंडरी सर्किट में ही होगा, प्राइमरी सर्किट में कुछ चेंज नहीं होगा, तो ऐसे ही रहेगी. ओके, आपको जो भी चेंज करना है वो ए और सी के बीच में ही करना है, मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको जो चेंज करना है वो करना है. सी पॉइंट के साथ ऑलवेज गैल्वेनोमीटर रहता है और गैल्वेनोमीटर के साथ कुछ झोंकी रहती है, यहाँ पे झोंकी है, ठीक है. ये सेकेंडरी सर्किट है. तो जो भी चेंज करना हो क्या किस में करना है, यहाँ पे ए और सी के बीच में करना है.
This remaining circuit is as it is. Always C is connected to the galvanometer, galvanometer is connected to the jockey, and jockey is just slide from A to B. You are just sliding the jockey from A to B, and you just stop this movement of a jockey whenever galvanometer shows a zero deflection. गैलोमीटर जब भी जीरो डिफ्लेक्शन आपको इंडिकेट्स करेगा उस पोजीशन पे आपको झोंकी को कैसे कर देना, स्टॉप कर देना, एंड यू गेट द नल पॉइंट. आपको फिर से क्या मिलेगा, नल पॉइंट. देन एग्जैक्टली दिस कंसेप्ट इज एग्जैक्टली सिमिलर एज अ लाइक अ विस्टर्न ब्रिज. ओके, विस्टर्न ब्रिज में भी यही करते थे, मीटर ब्रिज में भी वही किया, इसमें भी वही करना है. यू जस्ट स्लाइड द जोकी ओवर दिस वायर एंड यू जस्ट स्टॉप द मूवमेंट ऑफ अ जोकी ऑन द वायर व्हेन गैल्वेनोमीटर इंडिकेट्स द जीरो डिफ्लेक्शन. तो मान लो कि आपने जोकी को ऐसे मूवमेंट किया, यू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ सम करंट इज फ्लो थ्रू इट. इसमें से कुछ करंट फ्लो होगा. मान लो कि यहां से कुछ करंट फ्लो हो रहा है आई, यू कैन से सम करंट इज फ्लो थ्रू आई. यहां से भी कुछ करंट फ्लो होगा ऐसे, यहां से भी कुछ करंट फ्लो, यहां से भी कुछ करंट फ्लो हो रहा है. नाउ यू जस्ट कंसिडर सिंपल सिचुएशन. आपने एक जोकी को ऐसे मूवमेंट किया, यहां पे लेके आए और यहां पे आपने मान लो कि नल पॉइंट मिला आपको. You just get the null point at this position. Whenever you get the null point here, the current through galvanometer is what? Zero. What is the current through galvanometer? Zero. There is no any current. उसमें कोई भी करंट नहीं होगा. तो फिर इसमें भी करंट नहीं होगा क्योंकि इसमें से यहां से ऐसे करंट फ्लो होने वाला है. सो इन द सर्किट, इन द सेल EMF, इन द सेल करंट इज जीरो. मतलब पूरी सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा. इस सर्किट में जब भी करंट जीरो होता है तो आप EMF मेजर कर सकते हो. तो मतलब यहां से तो करंट फ्लो हो ही रहा है. देखो ये सर्किट को क्लोज नहीं की, यहां से तो करंट फ्लो हो रहा है. इस सर्किट में करंट जीरो हो गया, मीन सेकेंडरी सर्किट में आपका करंट जीरो हो गया, प्राइमरी सर्किट में करंट तो जा ही रहा है. तो मतलब इस वायर AB में से तो करंट फ्लो होने वाला है. कितना करंट फ्लो होने वाला है? I. हाउ मच करंट इज फ्लो थ्रू दिस वायर? I. ओके, ये सर्किट, ये सेल तो ऐसे ही है. आपने इसमें यहां पे कुछ ऐसा किया कि जैसे ए पॉइंट, इसमें से करंट नहीं जा रहा. मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल ऑफ AN इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ AC. वाई? अगर यहां पे करंट नहीं फ्लो रहा, उसका मीनिंग यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए. अदरवाइज देयर इज सम करंट मस्ट बी प्रेजेंट. When the current does not flow through the circuit, when the potential difference is zero, मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो यहाँ से यहाँ करंट नहीं फ्लो होगा. Then what is the situation? If you get the null point here, then there is, you must be right this type of situation. Potential of AN, मतलब potential difference between AN is equal to potential difference between AC. A सेम होगा तो ही वहां से करंट नहीं फ्लो होगा. तो आप एक ये सिचुएशन कब यहां पे राइट कर सकते हो? व्हेन IG इज इक्वल टू जीरो. अगर IG जीरो हुआ तो आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा. तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम रहेगा. ये पोटेंशियल तो पता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC इज इक्वल टू एप्सिलॉन. ओके, यहां से करंट नहीं है तो IR कुछ होगा नहीं, IR जीरो होगा. IR जीरो होगा तो VAC इज इक्वल टू व्हाट? EMF ऑफ सेल. Here what is this VAC? VAC is equal to EMF of सेल. मतलब आपका ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन. जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट जीरो होता है तब क्या लिखना है? एप्सिलॉन. तो इस पॉइंट A और C के बीच में एप्सिलॉन ही है तो ये तो मिल गया. चलो, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ VAN क्या होगा? What is this VAN? तो आप यहाँ पे एक और थ्योरी आपको सीखनी है और है पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो आप यहाँ पे ओ भी लिख देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट जन फाई से इंडिकेट्स होता है. सो व्हाट इज द फाई? व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट? सो फाई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. Potential drop per unit length. Potential drop per unit length. Okay, आप ये डेफिनेशन है. Potential gradient means what? Potential drop per unit length. That's called a potential gradient. एग्जाम्पल के यहाँ पे समझते हैं. मान लो कि ये कोई वायर है AB. कितना है वायर है AB? अगर आपने इसको कुछ बैटरी से कनेक्ट किया V वोल्ट की बैटरी से,
तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है कुछ, तो इसका पोटेंशियल मान लो कि 2 वोल्ट आ रहा है, इसका पोटेंशियल क्या है 2 वोल्ट। इस वायर की लेंथ है, आप मान लो कि 2 मीटर है, तो पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल कितना हुआ, यहाँ पे 2 वोल्ट है, 2 मीटर है, तो पर यूनिट लेंथ अगर 2 मीटर में 2 वोल्ट है तो 1 मीटर में कितना, इसको आप बोलते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट 5। मींस व्हाट, अगर आपने ऐसा माना कि यहाँ पे अगर V वोल्ट है मान लो और इसकी लेंथ L मीटर है ना, तो फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट का इक्वेशन क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट का इक्वेशन तो फाई क्या हो जाएगा, तो L मीटर में V वोल्ट है तो 1 मीटर में कितना, इसको बोलते हैं 5। सो 5 का आंसर आता है ऑलवेज V/L। 5 का आंसर क्या रहता है V/L, मतलब पोटेंशियल ऑफ AB अपॉन लेंथ ऑफ AB, पोटेंशियल ऑफ AB अपॉन लेंथ ऑफ AB, वी कॉल इट इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसकी डेरिवेशन है, इस तरह से आप डिराइव कर सकते हो। किसी वायर का पोटेंशियल V है, उसकी लेंथ L है, तो ये अभी इरेज कर देता हूं, ठीक है, तो समझने के लिए ही था। नाउ व्हाट हैपेंस, L मीटर में V वोल्ट है तो 1 मीटर में कितना, वही है, देखो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तो L मीटर में V तो 1 में कितना 5 इज इक्वल टू V/L। ओके, तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू V/L। What we have to write here, 5 is equal to V/L. That is the equation of potential gradient. That is the equation of potential gradient. Potential पर यूनिट लेंथ, मतलब L से डिवाइड करो, तो मतलब यहां पे भी आप ऐसा लिख सकते हो, अगर इसकी लेंथ जो है L है, मान लो कि इसकी लेंथ कितनी है L है, ओके, इसका इक्वेशन इस केस में क्या लिख सकते हो कि 5 इज इक्वल टू VAB अपॉन लेंथ ऑफ AB। 5 इज इक्वल टू VAB अपॉन लेंथ ऑफ AB, तो ये तो नॉन डेटा होगा गिवन सिचुएशन में। तो इसमें से कोई भी लेंथ के लिए क्या लिख सकते हो, अगर आपको VAN चाहिए, तो 5 का इक्वेशन और क्या लिख सकते हो कि 5 इज इक्वल टू VAN अपॉन लेंथ ऑफ AN, ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब पूरा वायर है तो पूरा वायर का पोटेंशियल अपन उसकी लेंथ, तो फिर इतना वायर है तो इतने वायर का पोटेंशियल अपन उसकी लेंथ, तो 5 का इक्वेशन कोई भी ऐसा लिख सकते हो, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो इससे एक तो मिल गया, दूसरा VAN चाहिए, तो इसमें VAN क्या रहेगा, व्हाट यू गेट द VAN हियर, सो VAN इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ ऑफ द वायर। सो लेंथ ऑफ द वायर कितनी है L, तो लेंथ ऑफ द वायर L, तो आप दोनों ही वैल्यू इसमें रखते हो, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 5 इंटू L, तो 5 इंटू L, ये हो गया EMF ऑफ सेल। So by this method you just get the answer of the EMF of cell. If you just perform the experiment, then you find the length by the using of scale, you put this value into this equation, you get the final answer. Okay, so that is the one method to get this answer. Okay, and whenever you just use this potentiometer, you are not made any change into the primary circuit, always you made a change in a secondary circuit. Okay, मान लो आपको इसमें ही जो भी चेंज करना है वो करना है, so that's the situation. Now this experiment, this full experiment of the potentiometer is useful in 2 cases. So case 1 to compare the EMF of cell, एक इसके लिए यूज होता है to compare the EMF of cell, पहले आप तो इसमें यूज कर सकते हो, या फिर सेकेंड you just using this one to find the internal resistance small r of a cell. आप इसके लिए भी इस पूरी थ्योरी, मतलब पूरा सेटअप का यूज कर सकते हो क्या। सो हम दोनों ही केस डिस्कस करते हैं, उससे पहले आप पूरा जो है वो नोट्स कर लो। Okay, now let us come to this first use to compare the EMF of cell. That is to compare the EMF of cell. Actually, if you see the circuit of potentiometer, then this is like this. Okay, this is the conceptual circuit to understand the potentiometer concept. Now, see this wire is very long, 4 to 5 meters. So this wire is bent in this way. ऐसे wire को bends करके इस circuit को पूरा create किया जाता है. This one is a A and B. This is a primary circuit. Here it is a secondary circuit. देखो यहाँ पे देखते हैं, this A and B points. So this point A and B, and its wire is connected. This is wire, okay, and this is the strips. These are the strip to bend the wire.
strips are used to bend the wire. Now A is connected to the battery, battery is connected to the rheostat, and it is connected to the B. A is connected to the battery, battery, rheostat, and B. Okay, and secondary circuit A is here and C is connected to the galvanometer. So A is connected to the cell and C is connected, that's point considered C. A points को आप C मान के चलो तो galvanometer साथ connect है, ऐसा पूरा circuit है. Now we have to apply the same concept in this situation. Okay, now let's consider the situation. Suppose K1 is closed. यहाँ पे आप दो पेन यूज कर रहे हो. Okay, और दोनों केस में आपको याद है. Suppose K1 is closed. Consider K1 is closed and K2 open. K1 is closed and K2 is open. So अगर आपने यहाँ पे ऐसे क्लोज किया इसको तो फिर यहाँ से कुछ करंट पास होगा. यहाँ से तो करंट पास हो ही रहा है ड्यू टू दिस वन. सो ये जो गैल्वेनोमीटर की झोंकी जो है, मान लो कि आपने ऐसे 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 करके उसको मूव किया तो कोई पॉइंट्स मिला आपको, ए पॉइंट्स मिला मान लो, तो ए नल पॉइंट्स मिला N1. ओके, सो यहाँ से IG कितना है 0. So you just move the jockey on the wire AB, so you get the null point at this point. You get the null point at this point, means thus current through the galvanometer is 0. और ये वायर की जो टोटल लेंथ है आप मान लो कितनी है, L1 है. What is this length of wire? L1. So what you have to write, VAC is equal to VAN1. आप ऐसा लिख सकते हो इस केस में. तो अगर ऐसा केस है then here N1 is a null point. N1 is what? नल पॉइंट है. तो आप क्या लिख सकते हो केस 1 में? ओके, इसमें आप क्या लिख सकते हो कि पोटेंशियल बिटवीन A एंड 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल बिटवीन A टू C, बट इस सर्किट में, ऊपर की सर्किट में, ठीक है, पोटेंशियल बिटवीन A टू C. इस केस में K1 ऑन है तो इसमें VAN1 क्या है, VA2N1 क्या है, दैट्स 5 इंटू लेंथ. सो 5 इंटू लेंथ इज इक्वल टू, ए क्या है E1, तो ये हुआ E1. तो मतलब E1 का आंसर क्या हो गया 5 इंटू L1. सो इक्वेशन नंबर 1. नाउ कम्स टू द सेकेंड केस. लेट्स वी डिस्कस द सेकेंड केस इन दिस वन. नाउ K1 इज ओपन. इसमें आपको K1 को क्या कर दिया, आपने ओपन कर दिया. K2 इज कनेक्टेड. मान लो कि ऐसे K2 को कनेक्ट किया. सो K1 इज यहाँ पे क्लोज था, K2 ओपन था. इन द सेकेंड केस व्हाट हैपन, K1 इज ओपन and K2 is close. ऐसे कुछ हुआ, K1 को ओपन किया, K2 को क्लोज किया, तो फिर यहां से कुछ करंट पास होगा. मान लो कि आपने ऐसे झोंकी को ऐसे ऐसे मूव किया तो डॉटेड लाइन से उसको दिखा रहा हूं. आपने कोई नए पॉइंट्स पे आपको नल पॉइंट मिला, मान लो N2. ये पूरे वायर की लेंथ कितनी है L2. सो इन दिस केस सपोज यू कंसिडर N2 इज अ नल पॉइंट. N2 is what? null point. आप में इसमें N2 null point मिला, मान लो लेंथ L1 है, तो इसमें भी आप लिख सकते हो ऐसे VAN2 is equal to VAC. बट यहाँ पे VAC जो S जो स्विच कनेक्ट है E2 लिखना है, यहाँ पे S स्विच कनेक्ट है तो E1 लिखना है. तो VN2 क्या होगा 5 इंटू L2 इज इक्वल टू E2. तो इसमें से E2 काउंट करो तो आंसर क्या होगा 5 इंटू L2. इक्वेशन नंबर 2. Here L1 and L2 measure by the using of scale. यहाँ पे स्केल रखी होगी एक्सपेरिमेंट में, तो आप L1 और L2 मेजर कर सकते हो, ठीक है. तो आप दोनों का रेशियो लो. ओके, सो बाय टेकिंग रेशियो व्हाट इज दिस आंसर, E1 upon E2, 5 कैंसल आउट इज इक्वल टू L1 upon L2. सी, आपने अगर L1 और L2 मेजर किया है तो आप EMF कंपेयर कर सकते हो. अगर दोनों EMF अननोन है तो आपको कंपेयर कर सकते हो. इफ एनी वन ऑफ दिस EMF इज नोन तो सेकंड फाइंड भी कर सकते हो. पास इस इक्वेशन में क्या कर सकते हो, कंपेयर द EMF इफ बोथ आर अननोन. दोनों ही अननोन है तो कंपेयर करना है. इफ वन ऑफ दिस इज नॉन, इफ वन ऑफ द सेल EMF इज नॉन, अगर कोई एक सेल का EMF नॉन है तो दूसरे का फाइंड भी कर सकते हो. देन फाइंड द EMF ऑफ
सेकेंड सेल। आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। अगर एक का नॉन है तो दूसरे का फाइंड कर सकते हो, दोनों अननोन तो दोनों को कंपेयर कर सकते हो। सो दैट इज द फर्स्ट यूज ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो पहले नोट्स कर लो, उसके बाद सेकेंड यूज पेपर चलते हैं टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ओके, ऐसे ऐसे नोट करो। Okay guys, now comes to the second use to find the internal resistance of a cell. तो सेम सर्किट मैंने यहाँ पे बनाई है, exactly same to same, no change. Here I am just consider this type of circuit. Here I am made one change between the A and C. यहाँ पे A and C में जो था उसके साथ एक additional resistance R रख दिया, वो नॉन होगा, ठीक है। This R is a non for us and we just choose this R from the resistance box, या फिर that one is a non resistance, non you connect the one non resistance with the cell. So cell ऐसा कुछ है, यहाँ पे की मान लो K है. So here we again just to choose the two cases. So case 1, if K is open, K is ओपन, अगर K ओपन है तो फिर AC ये रहेगा, ठीक है, AC ये रहेगा। ये इसमें से जो भी करंट है कि नहीं वो चूज करना है। So K is open, then consider suppose you just move the jockey from here to here and you get the somewhere here the null point. मान लो कि यहाँ पे आपको null point मिला N1, you just getting this null point at this situation. Suppose it is what, N1, मान लो कि N1 है, तो K is open at that time, N1 is a null point, N1 is what, null point। मान लो कि इसकी पूरी लेंथ जो L1 है, this one, so at that time VAC is equal to VAN1। you consider null point मतलब कि current through galvanometer is again what, 0। so here in this situation you just write your answer in this way। so VAC is equal to VAN1। अगर ये ओपन है, तो इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब जो भी यहाँ पे भी करंट नहीं होगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऑफ सेल होता है, ठीक है। तो आंसर होगा ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू, इसका क्या लिख सकते हो आप, 5 into L1 ऐसा लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हमने यहाँ पे डिराइव किया हुआ है, ईएमएफ इज इक्वल टू 5 into L, मतलब ईएमएफ नहीं है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी है ये, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ कम्स टू द सेकंड इक्वेशन। नाउ यू जस्ट टेक दिस K इज क्लोज्ड। अगर आपने यहाँ पे K को क्लोज किया, देखो सेकंड केस चलते हैं। सो नाउ K इज क्लोज्ड, सो इफ K इज क्लोज, तो K को क्लोज किया, फिर से इस जोकी को ऐसे ऐसे मूव किया। मान लो कि कोई दूसरी जगह पे आपको नल पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, सो दैट्स कंसिडर N1 सेकेंड केस। ओके, सो सॉरी N1 तो ही है, तो यहाँ पे N2। सो N2 इज अ नल पॉइंट, N2 इज इक्वल टू व्हाट, null point. So in this case N2 is a null point, simple situation. Consider the length is supposed to be L2, इसकी लेंथ कितनी L2, जैसे यहाँ पे L1 थी। देखो यहाँ पे कोई करंट नहीं, लेकिन यहाँ पे तो करंट होगा कि नहीं होगा कुछ, I यहाँ पे अगर K क्लोज है तो इसमें करंट फ्लो होगा, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर इसमें से करंट फ्लो होता है तो इसका A और C का पोटेंशियल VAC, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि VAC is equal to VAN2। बट इस केस में जब यहां से करंट फ्लो हो रहा है तब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो वो टर्मिनल वोल्टेज होगा, ईएमएफ नहीं होगा। क्यों, यह कि इस सर्किट K को क्लोज किया तो इसमें से तो करंट फ्लो होगा ही। तो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, दैट्स अ टर्मिनल वोल्टेज V, यहाँ पे करंट है इसलिए टर्मिनल वोल्टेज होगा, इज इक्वल टू 5 इंटू लेंथ कितनी मिली L2, सो 5 इंटू L2, इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ टेकिंग द रेशियो ऑफ दिस बोथ इक्वेशन, सो बाय टेकिंग रेशियो E अपॉन V इज इक्वल टू 5 कैंसल आउट, आंसर इज व्हाट, L1 अपॉन L2। सो आपको ये इक्वेशन पहले तो याद रखना है, ठीक है। Now we just solve out this problem, find the internal resistance of a cell। तो मान लो कि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कितना है, R है, कितना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, I हो रहा है। तो EMF की जगह पे आप क्या रख सकते हो यहाँ पे, what you have to write this in place of EMF, so EMF is equal to I into R plus R upon, ओके, टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट I है और टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R, EMF तो ये होगा सेल का। V की जगह मतलब इस दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है,
I और इसका रेजिस्टेंस कितना है R, तो IR होगा, तो ये होगा I इंटू आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ऐसा कुछ होगा आंसर। I को कैंसिल करो और R अपॉन आर क्या होगा 1 प्लस R अपॉन आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 1 राइट हैंड साइड बिकम्स -1 एंड R इज इन डिनोमिनेटर कम्स इन अ मल्टीप्लिकेशन, so R is equal to R into L1 upon L2 minus 1. So this is the, see L1 and L2 measured by the using of scale. R is a non-resistance. Then by using this equation you get the answer of internal resistance. So that is the second use of potentiometer. So by the using of potentiometer you get the internal resistance of a cell. आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस इक्वेशन को भी याद रखना है और इस इक्वेशन को भी याद रखना है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन हो गए। यहाँ पे एक एडिशनल नोट्स भी आपको लिखनी है, एडिशनल नोट। ओके, एडिशनल नोट्स में मतलब ऐसा कुछ है कि यहाँ पे एक ही सेल है लेकिन आपके पास जो 2 सेल है, सपोज आपके पास कितने सेल है, 2 सेल है, उन 2 सेल को आप सीरीज या फिर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो। ओके, जैसे पहली सर्किट थी, यहाँ पे आपने 2 सेल को सीरीज में कनेक्ट किया ऐसे। ओके, तो फिर आपको लेंथ L1 मिल रही है और 2 सेल को अपोजिट में कनेक्ट किया तो फिर लेंथ आपको L2 मिल रही है। मतलब आप इतनी सर्किट को ध्यान में लो, ए और सी के बीच की, ठीक है। तो ए और सी के बीच की मैं सर्किट यहाँ पे बना रहा हूँ। ए और सी में 2 सेल को आपने ऐसे कनेक्ट किया है पहले केस में, मतलब कि दोनों का करंट सेम होगा और ए और सी के बीच में 2 सेल को आप ऐसे कनेक्ट करें अपोजिट में, ठीक है। इसका EMF कितना E1, इसका EMF कितना E2, इसका EMF E1, इसका EMF E2, ऐसे कनेक्ट कर रहे हो और मान लो कि नल पॉइंट की लेंथ कितनी मिल रही है L1, ऐसे कनेक्ट कर रहे हो और नल पॉइंट की लेंथ कितनी मिल रही है, मान लो A2। तो मतलब बाकी सर्किट ऐसी ही रही, कोई चेंज नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, ए और सी में एक सेल की जगह पे 2 सेल ऐसे रखने हैं, लेकिन 2 सेल में पहले केस में क्या रखना है, ऐसे कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में रखना है। दूसरे केस में क्या रखना है, ऐसे डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में रखना है, ठीक है। तो इस केस में आप E1 अपॉन E2 को फाइंड करना चाहते हो तो आपका डायरेक्ट आंसर कुछ ऐसा रहेगा कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, ठीक है। 2 सेल मैंने मतलब पहला यूज जो हमारा था उसमें भी यही कुछ किया था, लेकिन आप एक की जगह पे 2 सेल ऐसे कनेक्ट कर रहे हो और आपको नल पॉइंट की लेंथ L1 मिल रही है, यहाँ पे नल पॉइंट की लेंथ L2 मिल रही है और आपको E1 अपॉन E2 का रेशियो चाहिए, तो फिर इक्वेशन कुछ ऐसा रहेगा। एक ही सेल है तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 ऐसा आता है, लेकिन 2 सेल है तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। पहले समेशन है तो समेशन, यहाँ पे सबसेक्शन कुछ जैसा होगा तो सबसेक्शन। एक्चुअली मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, एक्चुअली रिजल्ट ऐसा डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो बाय द डेरिवेशन, ओके। बट ये एडिशनल नोट्स है तो आप इक्वेशन याद रखो सीधा, ओके। बाकी कुछ नहीं करना है इसमें, मैंने सिर्फ जो भी चेंज किया उतना, बाकी सर्किट एज इट इज रखनी है और आप इक्वेशन को डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन अभी डिराइवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ इक्वेशन ही याद रख लो। कभी कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी जो थ्योरी आपकी बुक्स में नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम पोटेंशियोमीटर के एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे, ठीक है। नोट करो।